Hello friends, have you getting the problem in science, mathematics like subjects, in science, physics, chemistry, and bio? Especially in physics, chemistry, if you want to choose physics, chemistry in class 11, so you as you have listened from your brothers, elder brothers, or your family members that in class 11 there is sudden change in syllabus. So what can we do? There is the sudden change. For an example, if you are learning in this class ABCD and in next class they are telling now write essay, how you can? It's too much difficult to adopt that. So there is the sudden change. So if you want to become engineer, so in physics there is too much high level in class 8, but in CBSE, NCERT, ICSE now it is in the IIT VM. If you not want that, you can't adopt that. If you have to choose any subjects, physics, chemistry, maths like subjects, you not want that. You should adopt that class. So you should do this IITians books. It will help you too much in IIT, है ना? So मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स IIT क्लास 8 फिजिक्स कैसे मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक करके चैप्टर करके. इसमें टोटल 11 चैप्टर होंगे, तो इसमें मैं आपकी मदद करूँगा सॉल्व करने में. एंड बहुत अच्छी बात है, मेरे पास आपके लिए नोट्स हैं. अब नोट्स क्या है? नोट्स मैंने हर एक चैप्टर के नोट्स बना के रखे हैं, जो 12-13 कुछ एक दो चैप्टर बहुत बड़ा है, ऐसे 40-50 पेजेस का है. लाइट इतने बड़े बड़े पेजेस, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को मैंने 2 पेज में बांट लिया, मतलब जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. जैसे कि आज हम लोग एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेव मोशन एंड साउंड. आप समझ तो गए ना साउंड क्या है? साउंड जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है उससे कुछ वेव्स निकलती हैं, उससे हम लोग साउंड कहते हैं. अगर आपको ये आईआईटी की बुक सॉल्व करनी है, आपको अच्छे से समझना है, तो एक बार आपको क्लास 8 की सीबीएसई बुक सॉल्व कर लें. दैट विल हेल्प यू टू मच एंड इन एनसीईआरटी. सो व्हाट गोना वी डू, हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं. जो इसका जो चैप्टर है वेव मोशन एंड साउंड, उसे हम लोग करेंगे. ये चैप्टर 5 है अपना, वेव मोशन एंड साउंड. ये अच्छा खासा लंबा चैप्टर है. तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं. देखिए चैप्टर 5 वेव मोशन एंड साउंड. So friends, now we should begin our chapter wave motion and sound. It is the chapter 5. It is the lengthy chapter. I will give you notes. It is of only 4 pages in my notes, or 3 pages, I don't remember. तो हम लोग देखो चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं वेव मोशन एंड साउंड. मैं आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों कहूँगा, जिससे कि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे कि इंग्लिश भी अच्छी हो और आपको हिंदी में भी समझ में आए. ठीक है, तो देखिए चैप्टर 5 इंट्रो. इंट्रो में क्या है? Motion of particles and bodies is an important topic in physics. In the chapters kinematics and dynamics, you forgot all these things. I am giving you advice. Forgot these all things this much. ये मैं आपको बहुत सही एडवाइस दे रहा हूँ. बस आप यहाँ का देखिए, यहाँ से ये देखिए 1 मिनट. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. देखिए मैं इसे एक बार ऐसे हाईलाइट भी कर लेता हूँ. देखिए हाईलाइट हो गया. अब ये देखिए, if a bob takes 1 minute, that is 60 seconds, to complete 20 oscillations, then the time period and frequency are. First of all, you should know that what is time, frequency, these all topics. Then you should begin. You know time, what is the time, you should know. And frequency means in a minute, how many times a body vibrates. That is known as the frequency. Okay, so we know time, period, frequency. Now you have gonna understand that. So now there is the formula. N is equal to 1 over T. First of all, you should focus on this. N is equal to 1 over T. What's this N is equal to 1 over T? See, N is nothing but frequency. We denote frequency as N and time period as T. Okay, so then means 1 divided by the time always equal to frequency, or we can say that frequency is equal to 1 over time period. Understand now you this? See, N is equal to 1 over T. N is equal to 1 over T. This much or in this video only you understand. Don't try to learn anything. Okay? In my notes I will give you important things that will help you. So in this only you understand that what is the this and blah. So N is equal to 1 over T. And that is the formula that T is equal to, what is the time period? Time period is equal to time over
body vibrates, or see, this is our time. Okay, in this upside it will go the time, means if it has take 1 minute, so we will denote as 60 seconds because we will always calculate in seconds. So 60 seconds. Downside of what 20 we have done means number of body oscillated, 20 oscillations in this 20. Okay, so then we will divide, means time is equal to 3 seconds. And now frequency. What's frequency? As I told that a body vibrates in a minute, so we will denote as minute 60, sorry, if a body vibrates in 1 second. So then what we will do, first of all we will keep the number of oscillations per minute over 60 seconds. This much you understand? So now what gonna we do? We will divide this. Zeros gone, 0 से 0 कट गया, and फिर 6 divided by 2 which will result as 3, means 1 over 3 second. 1 over 3 second. Now you will see that here written is to the power of minus 1. How? See, s to the power of minus 1 always equal to 1 over s. Okay, this is the power system. You should do maths also. It will help you in too much in physics. So we have derived some formulas that t is equal to time over number of oscillations, whereas frequency is equal to number of oscillations over time, and frequency is equal to 1 over time period. This much you learn. Okay. Now here is simple pendulum. You know now what is pendulum? For an example, see this. This is think here is a bob and here is a rope or wire. Now see, it will move like this only, simple pendulum, and it will go in periodic motion. Okay, this much you understand, no? Periodic motion. This type of it is. Okay, pendulum I think that you have seen in books, and if you have seen in reality, so what a good thing that. So now you have understood what's this simple pendulum. Here can also example of in parks you see, there is वहाँ पे एक झूला होता है, उस पे लोग बैठते हैं तो फिर वो ऐसे ही तो मूव करते हैं आगे फिर ऐसे पीछे. वो भी एक सिंपल पेंडुलम का आप समझने के लिए एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, अब देखिए सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसे मूव करेगा. देखिए ऐसे मूव करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस से. ठीक है, ये ऐसे मूव करेगा. ऐसे आप चीजें समझ चुके होंगे. अब देखिए अब हम लोग आएंगे ये. यहाँ से देख के बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन कंफ्यूज मत होगा. ठीक है, देखो एक डायग्राम है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. व्हाट इज दिस? सॉरी, हाँ, व्हाट इज दिस? इन दिस दे हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट. मींस व्हाट्स डिस्प्लेसमेंट? इसमें देखिए एक हमने लाइन बना दी है इस तरीके बाय एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ये देखिए साउंड वेव्स है, ये है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स. टोटल 2 वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ये है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स. तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ये बॉडी ऊपर करेगी फिर नीचे आएगी, मींस वाइब्रेशंस. इट इज इन पेरियोडिक मोशन और नॉन पेरियोडिक ऑल्सो. दोनों तरीके के होते हैं. नॉइस नॉन पेरियोडिक होती है. अब मान लो कोई म्यूजिकल ये नोट है जो कि पेरियोडिक मोशन में जा रही है और वो प्लीजेंट है, तो वो देखिए इक्वली होगी. ये देखिए यहाँ पे ऐसे वो ऊपर जाएगी, ये डिस्टेंस उसकी इक्वल होगी. अब ये दोनों कहलाएंगे क्या? ये देखिए ये आपका कहलाएगा एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब जितनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है इस डाउन पॉइंट से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे. ठीक है, अभी ये सब ऐसा समझो, नाम को याद करने की कोशिश ना करो. इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे ना. अब देखिए आप, ये से हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, और एक यहाँ पे पॉइंट बन रहा है. जी, यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है आपका, और यहाँ पे भी आपका एक पॉइंट बन रहा है. तो अब क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे, मतलब जितना ऊपर एक के जा सके, मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में जितना ऊपर गया है उसे तो हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे. लेकिन अब यहाँ
यहाँ पे गया जो सबसे ऊपर जाने वाला जो पॉइंट है उसे हम लोग देंगे नेम क्रेस्ट, ठीक है, CREST, क्रेस्ट, वो अबव होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, लेकिन तब भी आप सुने, इसे हम लोग कहेंगे क्रेस्ट, और इस ऊपर वाले को भी हम लोग क्रेस्ट ही कहेंगे। CREST मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अबव, उसे हम लोग कहेंगे क्रेस्ट। अब देखिए नीचे भी है, अब नीचे भी आपका होता है, ये मतलब आपकी बहुत ही बहुत ही बारीकी की चीज़ें हैं, नीचे वाले को ट्रफ्स कहते हैं। तो अब क्या होगा, नीचे का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब इतना तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, अब ये सब T2 3T/4 इन सबको मत देखो, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो ये एक मिनट, आप नीचे देखिए, इनमें लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे। मेरी मानो अभी आप इसे, मैं चलो आपको इसे अभी आप मत, ठीक है, इससे अभी आप मत पढ़ो, मैं अभी आपको मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा एक अच्छी सी प्रैक्टिस है, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वेरिफिकेशन वगैरह, वेरिफिकेशन आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना आपको आना चाहिए उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ, वेव मोशन। अब वेव्स में वही आप मान लो, मतलब वेव मोशन देखिए यहाँ पे लिखा होगा, thus a wave is defined as disturbance created in the medium which propagates in all directions from the point of generation without actual translatory motion of particles of the medium, and the propagation of the wave is called wave motion। कुछ समझ में नहीं आया? अब देखिए, ऐसे आवाज आएगी जब भी आप ऐसे करोगे, या बैडमिंटन खेलो आप अपने रैकेट को ऐसे करोगे तो आवाज आती है ना, वो मतलब एक मीडियम से टकरा रही है। अब आप देखिए, ऐसे मान लीजिए आवाज आई, इसी तरीके से इसी को हम लोग वेव मोशन कहेंगे। इसे आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाए हैं मैंने आपको। अब देखिए ट्रांसवर्सी वेव्स आ गया, ट्रांसवर्सी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दो वेव्स हैं। पहले ट्रांसवर्सी वेव्स को समझते हैं। जैसा मैंने बताया था, ऊपर ये वाला एम्पलीट्यूड कहलाएगा आपका, ये वाली डिस्टेंस है ना, इतनी डिस्टेंस आपकी एम्पलीट्यूड कहलाएगी, ठीक है। अब ट्रांसवर्सी वेव्स में कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्सी वेव्स ऐसे डिनोट करने के लिए होती हैं। इसमें लिखा है दी सर्कुलर रिपल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एक्सपेंड एंड प्रोपेगेट थ्रू वाटर। नाउ व्हाट्स दिस? देखिए, जैसे आप घर पे कर सकते हैं, पानी की बकेट होती है, उसमें आप क्या करें, एक बीच में कुछ भी इस तरीके से सिक्का या पत्थर कुछ इस तरीके से डाल दें। डाला, अब देखिए उसमें मतलब वेव फॉर्म होती हैं। आपने कुछ देखा होगा ना, ऐसे ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से जाता है। उससे आप एग्जांपल ले सकते हो ट्रांसवर्सी वेव्स का, वो ऊपर नीचे उसका एम्पलीट्यूड इक्वल होता है। तो वो धीमे धीमे, मतलब एकदम से सडन चेंज नहीं आता, लेकिन धीमे धीमे आता है, ठीक है। वो नॉइज में आता है सडन चेंज। अब देखिए क्रेस्ट, अब ये वाली इसे हम लोग कहते हैं क्रेस्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऊपर, ठीक है, क्रेस्ट, और नीचे है ट्रफ्स, ये देखिए ट्रफ्स, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? चलो ये अब देखिए आप, हाँ, दो क्रेस्ट के बिटवीन की डिस्टेंस, टू सक्सेसिव क्रेस्ट, मान लो ऐसे कि क्रेस्ट 1 ये है, क्रेस्ट 2 ये है, इन दोनों की डिस्टेंस मतलब सक्सेसिव होनी चाहिए, वो दोनों सक्सेसिव होनी चाहिए। उन दोनों की डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। मींस इन दोनों सक्सेसिव क्रेस्ट की डिस्टेंस को, जितनी बीच डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। और नीचे के ट्रफ्स के साथ भी ऐसा ही, जो नीचे के दो ट्रफ्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे, उनकी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस होंगी बीच में, उससे भी हम लोग कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। आपको ये समझ में आया क्रेस्ट और ट्रफ्स वगैरह? अब देखिए जिसमें एम्पलीट्यूड का अब आ गया कि एम्पलीट्यूड वगैरह। अब देखिए वेवलेंथ को भी हम लोग एक चीज से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को भी हम लोग एक चीज से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लैम्बडा। देखिए इसमें दिया गया कुछ इस तरीके का साइन है, आपको समझ में आ रहा है ना। वेवलेंथ जैसे कि मान लो मेरी आई है 7 है डिस्टेंस वेवलेंथ, ठीक है, तो टोटल 7 है वो, तो उसे मैं डिनोट करूंगा एज 7 लैम्बडा, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखिए, अब फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी आपको किससे डिनोट करनी होगी? एन से, जैसे आप जान चुके हो, लेकिन अब उसे हम लोग
डिनोट कर रहे हैं एन से, लेकिन अब हम लोग उसे किसी चीज से मेजर भी तो करेंगे, ठीक है। उसे मेजर कैसे करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे हर्ट्ज। जैसे कि कितना साउंड हो गया, 3 हर्ट्ज, कितनी फ्रीक्वेंसी है, 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही है बस। अब देखिए अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्सी वेव्स में आपको एक अलग ही अंतर दिख रहा होगा। ये हाँ, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें कुछ इस तरीके से होता है। अब क्या होता है इसमें भी, अब आप यहाँ देखिए, ये जो जगह है आपकी इतनी, यहाँ पे पास पास में आ गई है ना, और यहाँ पे देखिए दूर दूर हो गई है, यहाँ पे पास आ गई, यहाँ दूर हो गई, यहाँ पास आ गई। अब इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, जब यहाँ पे ये वेव्स पास पास में आपको दिखे, ठीक है, जब हमें वो पास पास में दिखे तो उसे हम लोग कहेंगे कंप्रेशंस, ठीक है। उसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं कंप्रेशंस। और जो दूर दूर होंगी, मतलब जो दूर दूर हो रही है, उन्हें ऐसे तो हमने कंप्रेशंस कह दिया। अब जो दूर दूर है उसे हम लोग रेयर फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पास पास वाली चीज को हम लोग कहेंगे कंप्रेशंस, इस दूर दूर वाली चीज को हम लोग कहेंगे रेयर फ्रैक्शंस इन वाली साउंड बेस पे, ठीक है। इसमें फिर सारी वही चीजें लग रही हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्रेशंस को आप लोग कंडेंसेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कंडेंसेशंस भी कह सकती हैं, जितनी ये डिस्टेंस है उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन के लिए मेरे हिसाब से कोई नाम नहीं है, दूसरा नाम कोई नहीं है रेयर फ्रैक्शंस के लिए। अब इसमें आप देख लीजिए, टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन इज नोन एज वेवलेंथ। अब आप ये देखिए, यहाँ से डिस्टेंस में, एक मिनट आपको अच्छे से समझाने के लिए पेन लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके देखिए, जो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ से लेके एक मिनट, ये इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट से मान लो, ये वाला रेयर फ्रैक्शन चालू हुआ है ना, यहाँ पे दूर दूर होने चालू हुए, और इस वाले पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये वाला पॉइंट, ये देखिए इन 2 पॉइंट के बीच में, यहाँ पे देखिए फिर दूर दूर होने चालू हुए, यहाँ पे दूर होती, तो इन 2 के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे इसमें ना, कहाँ गया, मैं आपको इससे समझा दूँ। इसी को हम लोग कहेंगे वेवलेंथ। टू सक्सेसिव बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस इज नोन एज वेवलेंथ। वेवलेंथ का भी अपना टॉपिक क्लियर हुआ, हाँ वेवलेंथ का भी हो गया अपना। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड को टी से करेंगे, वेवलेंथ को लैम्डा से करेंगे। अब देखिए इनके बीच में भी एक रिलेशन है। अब देखिए अब ये 3 चीजें हो रही हैं, वेवलेंथ वगैरह सब हो रहे हैं, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ही। तो अब देखिए क्या है, जैसे कि हम ह्यूमंस के बीच में, सारे ह्यूमंस के बीच में कोई रिलेशन है। जैसे आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, हम लोग कह सकते हैं t इज आल्सो इक्वल टू 1/n। अब कैसे, हमें ये पता था कि n इज इक्वल टू 1/t। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, t यहाँ आ गया, n नीचे चला गया, तो t इज इक्वल टू 1/n मींस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। इतना अपना क्लियर हुआ। अब इनके बीच का रिलेशन क्या है, ये देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी कहाँ से आ गया, सब समझ लो, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी किसका प्रोडक्ट है, आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फिर से सवाल दिया आपने। अब देखिए जब आप फ्रीक्वेंसी जितनी आई है आपके पास और जितनी आपके पास वो है वेवलेंथ, उन दोनों का मल्टीप्लाई के वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब एग्जांपल पे हम लोग आपको दिखा देते हैं। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक सवाल पूछा गया है, इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ, एक मिनट, हाईलाइट, हाँ हाईलाइट हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव वाज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इज 50 हर्ट्ज। मतलब एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है,
फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेटिंग ऑडियो उसने फ्रीक्वेंसी क्रिएट किया है जो कि 50 हर्ट्ज के बराबर आई है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसे हम लोग मीटर, जैसे आपको दिया गया होगा मीटर सेंटीमीटर में हम लोग करते हैं हमेशा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड। और देखिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ एयर भी दे रखी है कि 330 मिनट पर सेकेंड। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा देना है। हाँ, एक पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो को मैं पार्ट में डालूंगा, टोटली 2-3 पार्ट्स में आएगी ये वीडियो। अब देखिए इसे हम लोग ख़त्म कर देंगे थोड़ी देर में इस वीडियो को। तो अब पहले मैं इसे बता दूँ, आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी अपने पास 50 हर्ट्ज है, वेवलेंथ आपके हमें निकालनी है, वेलोसिटी हमारे पास 330 है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अच्छा सा, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा था ना, ये देखिए, एक मिनट, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, एक मिनट, हाईलाइट ग्रीन कलर से, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, जो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था उसके अनुसार वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 3, तो 3 से 330 यहाँ रख दो वेलोसिटी पे, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। हमें लैम्डा निकालना है तो n को हम लोग कर लेते हैं 50 हर्ट्ज, हमें दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिखाए जा रहे हैं, एक मिनट, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाया गया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। इसमें देखिए मैंने वेलोसिटी पुट करनी है पहले मुझे 330, ठीक है, और n मेरे पास है 50। तो अब देखिए क्या होगा, ये पहले क्रॉस मतलब क्या होगा, जो ये n है ना, ये n नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अगर मैथ में जब आप देखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1/n मल्टीप्लाई बाय 1/n, हम लोग दोनों साइड कर देंगे LHS और RHS पे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ से n तो कट जाएगा और v के नीचे आ जाएगा n, तो फिर मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर n, ठीक है। ये हमें एक फॉर्मूला है। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो वेलोसिटी 330 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 है, रख दीजिए आप, कट जाएगा, फिर 6.6 मीटर। और सोचोगे कि मीटर कहाँ से है, देखिए सवाल में ही है 330 मीटर पर सेकेंड। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दे जाता तो आप सेंटीमीटर लगा दिया होते, ठीक है। ऐसे आपको करना है। अब देखिए अब यहाँ पे साउंड आ चुका है, अब ये बहुत ईजी टॉपिक रह गए हैं, है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नेचर, म्यूजिकल, अब तो ईजी है, अब तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखिए सवाल आ जाएंगे, मैं इसमें आपको MCQ करूँगा क्योंकि MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखिए हमने आज जितना पढ़ा है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशंस में कर देना, ठीक है। तो फिर आज हमारी पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है, मतलब ख़त्म नहीं, आधा हुआ है, आधा तो कम से कम ख़त्म हुआ है, अभी कुछ ही समय में ख़त्म हो जाएगा। सो बाय बाय। मैं आपको धीमे धीमे और भी चैनल्स की लिंक दे दूंगा, जैसे कि मेरा ऑल्सो है एलियन लाइफ सर्चिंग ऑर्गेनाइजेशन, सुपर मैच जैसे चैनल्स की, इसमें मैं लिंक भी दे दूंगा, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। बाय बाय, एंड दिस इज द चैनल ऑफ CI वर्ल्ड। बाय बाय, आई एम द अथर।